فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید گوندل حافظ اللہ تعالی، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اور سرجانی ٹاؤن ملیر اور گلشن اقبال نارتھ کراچی میں بارش کا سلسلہ بھی تھوڑی دیر پہلے جاری تھا، اس وجہ سے بھی شیخ صاحب آج کے پروگرام میں یہاں تشریف نہ لا سکے، اور ہمیں آج کا یہ اجتماع بھی پروگرام بھی باہر روڈ پہ منعقد کرنا تھا، لیکن موسم کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہاں ہم موجود ہیں، اور الحمدللہ ہمارے درمیان ہم سب کی ہر دل عزیز شخصیت بھی موجود ہیں۔ اور جب کوئی پنجاب سے خطیب آتے ہیں تو میری ڈیوٹی یہ لگائی جاتی ہے کہ آپ نے ان کی تقریر سے پہلے ذرا 5-6 منٹ گفتگو ایسی کرنی ہے کہ آپ لوگ جاگ جائیں، کراچی والے بیدار ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ اب میں الفاظ سوچوں کہ میں نے کیا کہنا ہے، کیسے بولنا ہے، اتنی ساری باتیں ہیں، تو اسمارٹ ورکنگ کا زمانہ ہے اور سب اسمارٹ ورک کر رہے ہیں، تو آپ کو جگانے کے لیے اسمارٹ ورک کا طریقہ ایک یہی ہے کہ آپ لوگ جو بیدار ہونے کی صبح دعا ہے نا، سو کر اٹھنے کی، وہ پڑھ لیں، آپ سارے وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ بیدار ہو جائیں گے، اور نہیں بھی بیدار ہوئے تو الحمدللہ نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، محبوب عوام، مقرر شیریں بیاں و شعلہ بیاں اور خطیب پاکستان فضیلت الشیخ قاری بن یامین عابد حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ موجود ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ بیدار کر کے چھوڑیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ قریب قریب تشریف لے آئیں۔ آپ دوست جو دور بھی بیٹھے ہیں، اگر بزرگ ہیں ٹیک لگا کے بیٹھیں ٹھیک ہے، لیکن نوجوانوں سے گزارش ہے کہ قریب تشریف لے آئیں۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری بن یامین عابد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ٹھیک ہے۔ الحمد للہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبیه ورسوله محمد وآلہ وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
مختصر حمد و صلات کے بعد صلہ رحمی کی بہترین مثال جس کا ذکر اللہ پاک نے اس آیت میں کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صلہ رحمی کے بہترین مثال آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، جن کی چمک اور دمک سے آسمان بڑا مزین اور خوبصورت ہے۔ سارے ستارے مل کر چمکتے ہیں تب ہی جا کے آسمان میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کی بہترین مثال گلاب کا پھول ہے، کتنا پیارا ہے اور کتنا دلکش ہے اور کتنا خوشبودار ہے۔ گلاب کے پھول کی رنگت اور اس کی خوشبو اور اس کی خوبصورتی کا ایک ہی راز ہے، اور وہ ہے صلہ رحمی۔ گلاب کی پھول کی جتنی پتیاں ہیں ان سب نے مل کر آپس میں محبت و پیار کے ساتھ صلہ رحمی کی ہوئی ہے، آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور ان کا آپس میں جڑنا ہی گلاب کہلاتا ہے۔ اور جب یہ پتیاں الگ الگ ہو جائیں گی نہ گلاب رہے گا اور نہ ہی اس میں شباب رہے گا۔ صلہ رحمی کی بہترین مثال آپ کسی فروٹ والے سے سیکھ سکتے ہیں۔ فروٹ والے کے پاس جائیں تو آپ کو نظر آئے گا اوپر وہاں بڑا خوبصورت اس نے بڑی خوبصورت جگہ بنائی ہے اور اس کے اندر اس نے انگور رکھے ہوئے ہیں، اور ان انگوروں کے اوپر چمکیلی پٹیاں لگی ہیں، چمکدار پٹیاں ہیں۔ ہاتھ میں اس نے ایک چھوٹا سا کپڑا پکڑا ہوا ہے، بار بار اس کو صاف کرتا ہے، اوپر مکھیوں کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ اسے جا کے آپ پوچھیں یہ کتنے روپے کے کلو ہیں تو وہ کہے گا یہ 500 کے کلو ہیں، 4.5 کے کلو ہیں۔ تھوڑا غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نیچے بھی ایک گندی سی ٹوکری ہوگی، اس کے اندر بھی کچھ انگور پڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ انگور کم ہوں گے، اس کے اوپر انگوروں سے زیادہ مکھیاں ہوں گی اور بہت ساری دھول بھی ان کے اوپر ہوگی۔ آپ ان سے پوچھیں یہ کتنے روپے کلو ہیں تو وہ کہے گا یہ میں 150 کے بھی دے دوں گا، لے جاؤ۔ بھئی یہ انگور نہیں ہیں، یہ بھی انگور ہیں، یہ میٹھے نہیں ہیں، یہ بھی میٹھے ہیں، وہ بھی انگور ہیں، یہ بھی انگور ہیں، وہ بھی میٹھے ہیں، یہ بھی میٹھے ہیں۔ وہ 500 کے دے رہے ہو، یہ 100-150 کے دے رہے ہو، تو وہ کہے گا وہ اپنے خوشوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ سارے الگ تھلگ ہوئے پڑے ہیں، یہ اپنے خوشے سے جدا ہوئے پڑے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب بندہ اپنے رشتہ دار اپنے اپنوں سے جدا ہو جاتا ہے پھر اس کا ریٹ بھی نہیں رہتا، پھر اس کا گریڈ بھی نہیں رہتا۔ ریٹ بھی اسی کا ہوتا ہے، گریڈ بھی اسی کا ہوتا ہے، شان اور پہچان اسی کی ہوتی ہے جو اپنوں کے ساتھ مل کر رہتا، جڑ کر رہتا۔ اور شریعت اسلامیہ میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے، ہمیں بار بار حکم دیا گیا ہے صلہ رحمی کرنے کا،
जुड़ने का, मिलकर बैठने का बार बार हमें हुक्म दिया गया। और कुरान करीम की जो आय मुबारक मैंने आपके सामने कुछ हिस्सा तिलावत किया, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक पूरी डिटेल बयान की है रिश्तेदारों की, अजीज व अकारब की, किन किन के साथ दर्जा बदर्जा हमने कैसा कैसा सलूक करना है और किस किस के हुकूक को हमने किस तरह अदा करना है। तो मैं इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ उसी एक आयत की तनाजुर में आपके सामने चंद एक बातें जिक्र करूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में गुजारिश है और दुआ है कि मैं जो कुछ बयान करूं अल्लाह मुझे और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि ihsana वबिजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वअबुदुल्लाह, इबादत अल्लाह की करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, सिर्फ उस अकेले की इबादत है, किसी दूसरे की नहीं। सजदा भी उसके लिए, रुकू भी उसी के लिए, नजर और नियात भी उसी के लिए, मिन्नत और समाजत भी उसी के लिए, मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई का नारा भी उसी के लिए, इकाई का, यकताई का, तन्हाई का नारा भी उसी के लिए। वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के अलावा न किसी के सामने सर झुकाना जायज है। गर्दन कटाई भी जाएगी तो अल्लाह के लिए, गर्दन झुकाई भी जाएगी तो अल्लाह के लिए। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। पूरी कायनात का दाता भी अल्लाह, मुश्किल कुशा भी अल्लाह, हाजत रवा भी अल्लाह, बिगड़ी बनाने वाला भी अल्लाह, बेटे देने वाला भी अल्लाह, बेटियां देने वाला भी अल्लाह, इज्जत और जिल्लत का मालिक भी अल्लाह, मशरिक का, मगरिब का, शमाल का, जनूब का, जमीन का, आसमान का, हवाओं का, फिदाओं का, शिफाओं का, जलवत का, खलवत का, जाहिर का, बातिन का, अव्वल का, आखिर का, नारियों का, नूरियों का, खाकियों का, आबियों का, फलकियों का, फर्शियों का, जमीनियों का, आसमानियों का, पहलों का, बाद वालों का, नबियों का, वलियों का, पैगंबरों का, सहाबियों का, वहाबियों का, पूरी कायनात का दाता अल्लाह है और अल्लाह की कसम अकेला है। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। सब कुछ बर्दाश्त होगा, सब कुछ से सरफे नजर होगा, सब कुछ से अफू दर गुजर होगा, लेकिन शिरक से कभी नहीं होगा। सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, नजरे रहमत से धो दिए जाएंगे, शिरक माफ नहीं किया जाएगा। हमारी जमात के एक बुजुर्ग आलिम दीन गुजरे हैं, पंजाब के शहर बूरावाला के।
उनका नाम था मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह। शायद आप में से किसी ने नाम सुना हो, देखा भी हो। तो वो फरमाते हैं कि दमिश्क की जामिया मस्जिद के अंदर एक बंदा आया, नमाज मगरिब के बाद उसने मौलाना से मसला पूछा, मौलाना मैं बड़ी दूर दराज का सफर करके आया हूं, तब ये दौर भी नहीं था, पुराना दौर था, लंबा तवील सफर करके मैं आपके पास सिर्फ एक बात पूछने के लिए आया हूं, और वो बात ये है कि अल्लाह को शिरक क्यों गवारा नहीं? अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, सब गुनाह माफ होंगे, शिरक नहीं होगा। वो मेहरबान है, वो रहमान है, वो रहीम है, जी हाँ इतने कर देता है, शिरक भी कर दे, शिरक उसको वारा क्यों नहीं खाता? तो मौलाना फरमाने लगे, भाई मसला बड़ा तूने अच्छा पूछा है, इसका जवाब मैं तुम्हें सुबह दूंगा। सुबह नमाज फजर के बाद मैं दर्स देता हूं, जब मैं दर्स शुरू करने लगूं तो उठ के खड़े हो जाना, सवाल करना, मैं जवाब दूंगा तो सबको मसले का पता चल जाए। उसने कहा जी रात कहां रहूं? मैं तो मुसाफिर हूं, दूर से आऊं। कहा मेरे घर रह लो, मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूं। घर ले गए, जो खाना शाम का था वो तो हो गया, उसको बैठक में बिठाया और बैठक के छोटे दरवाजे से अंदर गए और जाके अपनी ज़ौजा मोहतरमा को फरमाने लगे, एक मेहमान आया है बड़ा खास, तो उसका शाम का खाना तो मैंने इंतजाम कर दिया, उसने खा लिया, लेकिन सुबह का नाश्ता उसका मैंने पकाना है, और नाश्ता भी उसका बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, देसी घी का हलवा होना चाहिए, खालिस दूध की खीर होनी चाहिए, और जो है अंडे भी देसी होनी चाहिए, और पराठा भी बड़ा जबरदस्त ऊपर मक्खन लगा के बना होना चाहिए। तो ज़ौजा मोहतरमा बड़ी परेशान हुई कि ये कौन सा ऐसा मेहमान आ गया है जो हम मौलवियों से देसी घी खा रहा है, हम मौलवियों से देसी अंडे और पराठे, ये कुछ चक्कर जरूर है। वो कहने लगी बात यह है, मैं बनाऊंगी तो सब कुछ, लेकिन पहले मुझे बताओ ये है कौन? उसने कहा अब जो आए तो मैं बताया करूं कौन है, मेहमान है, बड़ा खास है, आया हुआ है, बस तुम पकाओ, कोई चीज है तो बताओ, कोई मिसिंग है तो मुझे बताओ, मैं जाके लेके आऊं। मक्खन लादिम है, देसी घी लादिम है, देसी अंडे लादिम है, पराठे लादिम है, हलवा लादिम है, खीर लादिम। ओहो, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये दाल में कुछ काला जरूर है, कोई बात जरूर है, मैं ये बैठी हूं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा जब तक मुझे ये पता ना चला कि ये आने वाला है कौन। जब घर में आवाज थोड़ी बुलंद होने लगे ना, तो बैठक में बैठे लोगों को आवाज सुनाई देती, वो धीमी धीमी आवाज जा रही, वो सुन भी रहा था ये हो क्या रहा है। उसने कहा भाई छोड़ो, तुम्हें क्या करना है? नहीं नहीं मौलाना, मैं पूछ के ही छोड़ूंगी, फिर बनाऊंगी सब कुछ, बताओ कौन। वो कहने लगे असल में ना ये जो मेहमान आया है ना, ये मेरे लिए रिश्ता लेकर आया है। उसने कहा बच्ची मदरसे की फारिग है, खूबसूरत है, तो आप इसके साथ निकाह कर लें। बस इतनी बात जबान से निकलने की देर थी तो तवा हो गया, घर के बर्तन वो गए, चंगेरो कोई है, और सब कुछ, वो घर में तो फायरिंग शुरू हो गई। वो बड़ी मुश्किल से उसने कंट्रोल किया, पर नहीं, सारी रात वक्फे वक्फे से फायरिंग होती रही, सारी रात सिलसिला जारी रहा। सुबह की नमाज का वक्त हुआ, नमाज फजर मस्जिद में पढ़ी, तो फजर की नमाज मुकम्मल होती ही मौलाना दर्स शुरू करने लगे। वो निकलने लगा, वो जाने लगा, तो वो कहां जा रहा है भाई, मसला तो पूछ ले। उसने कहा जी नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे मसला पूछने की जरूरत नहीं है। रात मुझे मसला समझ में आ गया है कि एक 5 मरले के घर में रहने वाली औरत को शरीक वारा नहीं खाता, अर्श वाले मालिक को शरीक कैसे वारा खाए? वो तो पूरी कायनात का बादशाह है।
وہ تو मालिकुल मुल्क है, उसके हाथ में बियदिहिल मुल्क, पूरी कायनात का अकेला तने तनहा बादशाह, कुन फयकून की अथॉरिटी रखने वाला, वो कैसे गवारा करेगा कि उसका शरीक हो। फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करनी है, उसके साथ किसी को शरीक ठहराना, कोई उसका शरीक नहीं है, कोई उसका हमसर नहीं है, कोई उसके साथ बराबरी करने वाला नहीं है, कोई नहीं है, सोचना भी नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। और मैं कहा करता हूं, बंदे के पास सिम जोंग की हो, उसमें दौड़ भी जोंग का ही चलता है, बंदे के पास सिम जैज की हो, उसमें दौड़ भी जैज का ही चलता है, बंदे के पास सिम टेलीनार की हो, उसमें लोड भी टेलीनार का चलता है। अल्लाह के बंदो, जब सर बनाने वाला रब हो, फिर सजदा भी उसी का चलता है। इतनी सी सिम जिन्होंने बनाई है, इतनी सिम, अब तो इससे भी छोटी आ गई ना, नैनो सिम, ये नाखून बड़ा है, सिम इससे भी छोटी है। और जिसने इतनी छोटी सिम बनाई है, वो इसमें किसी का लोड नहीं चलने देता। जिसने ये इतना बड़ा वजूद बनाया है, वो सजदा किसी का चलने देगा? नहीं चलने देगा। तुम चलाओ तो सही, ये सारे सजदे तुम्हारे रायगा जाएंगे, सजदा वही कबूल होगा जो मालिक के अर्ज़ व समा के सामने किया जाएगा। बस फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, इबादत अल्लाह की करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। ये अल्लाह का हक है। हुकूक का जिक्र हो रहा है ना, तो हुकूक में सबसे पहला हक अल्लाह पाक का, जिसने पैदा किया, पहले उसके हक को अदा करो। हुकूकुल्लाह के बाद आगे फरिश्ता आ गई हुकूकुल इबाद की, बंदों के हुकूक की फहरिस्त का जिक्र किया। और बंदों के हुकूक में पहला हक किसका है? फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह के हुकूक के बाद बंदों के हुकूक में सबसे पहला हक माँ बाप का है। सबसे पहला हक जमीन पर माँ बाप का। कहीं तेरा बाप नाराज न हो जाए, कहीं तेरी माँ तुझ पे नाराज न हो जाए। मेरे भाइयों, मैंने कुरान भी पढ़ा, मैंने अल्लाह के पैगंबर की हदीस का मुताला भी किया। जहां तक मैंने पढ़ा, मैंने कहा नहीं लिखा, कहीं भी लिखा नहीं देखा। ये लिखा हो, वोटरों को राजी करो, रब राजी हो जाएगा। सपोर्टरों को राजी करो, रब राजी हो जाएगा। अपने यारों दोस्तों को राजी करो, रब राजी हो जाएगा। ये मुझे कहीं लिखा नहीं मिला, अलबत्ता सही हदीस में ये लिखा है, रिज़र रब्बी फी रिज़ल वालिद, जमीन पे तेरा माँ बाप राजी होगा, अर्शे बरी पे तेरा रब राजी हो जाएगा। वला तुशरिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, कभी उनको परेशान न करो। और यारो, मैं तो पंजाब में यूं कहा करता हूं, किसी बंदे को मार ना हो, वो किससे मरेगा? पिस्टल से मर जाएगा, गन से मर जाएगा, वेपन से मर जाएगा। और लोगों, आम बंदे गन्नों से, पिस्टलों से मरते हैं, माँ बाप औलाद के तानों से मर जाते हैं, माँ बाप औलाद के तानों से मर जाते हैं। ये मेरी मजलिस में जो बूढ़े बूढ़े बाबे तशरीफ फरमा, आप इन्हें ले जाएं, वहां बिठाएं,
چائے پلائیں، چائے کے بعد پیار کے ساتھ ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں آپ بیمار کیوں ہیں بابا، آپ کو ہارٹ اٹیک کیوں آیا ہے، آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ کیوں ہے، تو یہ کہیں گے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، نہ مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے، نہ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب میری اولاد کے غم کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری اولاد کے دکھ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یقین جانیے جس بیٹے کو یوں اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالا ہو، اس کو کھلایا ہو، اور جس کو سمجھانے کے لیے، جس کے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنی زبان کو بھی توتلا کیا ہو، بچہ توتلا بولتا ہے تو ماں بھی توتلا بولنے لگتی ہے، بچہ توتلا بولتا ہے تو باپ بھی توتلا بولنے لگ جاتا ہے، اور جن بچوں کے لیے اپنی اصل زبان کو چھوڑ کر انسان توتلا بولے، اور جن بچوں کے لیے انسان وہ 4 5 10 منزلہ بلڈنگ پہ جائے اور ان کے لیے کما کے لے کے آئے، جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے بابا آپ چپ رہا کرو، آپ کو کسی بات کا نہیں پتا، اللہ کی قسم ہے یہ بات نہیں نکلی، یہ تیری زبان سے گولی نکلی ہے جو تیرے باپ کے سینے میں ہارٹ اٹیک بن کے لگی ہے، یہ تیری زبان سے کارتوس نکلا ہے جو تیری ماں کے سینے میں بلڈ پریشر بن کے لگا ہے۔ اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو، ابھی پیچھے آپ نے قربانیاں کی ہیں، قربانی سے آپ نے سبق سیکھا ہوگا، ایک سبق میں بھی آپ کو بتلاتا ہوں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے چنیدہ پیغمبر، اللہ کے پیارے پیغمبر، یوں اپنے والد محترم کے سامنے بیٹھے ہیں اور اپنے والد محترم کو مخاطب فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کبھی فرماتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کبھی فرماتے ہیں یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اس کا معنی کیا بنا؟ یا ابتی یا ابتی یا ابتی کیا مانا؟ اے میرے ابو جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے بار بار کہہ رہے اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا۔ اب ابا جان بولے، ابا جان کیا کہتے ہیں؟ یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم تو مجھے سمجھاتا ہے، ابراہیم تو مجھے تعلیم دے گا، ابراہیم تو مجھے بتلائے گا، علم تیرے پاس ہے، خبردار میرے ساتھ دوبارہ اس طرح بات کی میں تجھے تھپڑ ماروں گا، میں تجھے دھکے ماروں گا، میں تجھے پتھر ماروں گا، میں تجھے رجم کر ڈالوں گا۔ پھر ابراہیم بولے، فرماتے ہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اے میرے ابا جان، آپ مجھے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں گے، میں اپنا آپ کا ہاتھ پکڑ کے چوم لوں گا، آپ مجھے پتھر ماریں گے، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کروں گا۔ یہاں سے مجھے جو مسئلہ سمجھ میں آیا وہ یہ ہے، باپ مارے بھی تو باپ کو آگے سے مارنا جائز ہے۔ میں تو جذباتی ہو جاتا ہوں، یقین جانیے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے جو ہاتھ باپ پہ اٹھ جائے، اس ہاتھ کو تیزاب میں پھینک دینا چاہیے جو ہاتھ باپ پہ اٹھ جائے۔ ارے میرے محترم بھائیو، اس ہاتھ کو کسی چیز کے ساتھ کیما کر دینا چاہیے، جو ہاتھ باپ اور ماں پہ اٹھ جائے وہ ہاتھ بدن کے اوپر لگنے کے قابل نہیں ہوتا، جو ماں اور باپ پہ اٹھ جائے
शरीयत ये बताती है ना माँ बाप के सामने आंख उठाना जायज है, ना माँ बाप के सामने हाथ उठाना जायज है। हजरत इब्राहिम पैगंबर ने ना आंख उठाई ना हाथ उठाया। ये है अदब माँ बाप का। और हमें ये सोशल मीडिया ने और ये टिकटॉक के जुनून ने हमें यहां तक पागल कर दिया है। मुझे का चंद माह पहले की एक खबर मैंने देखी थी कि 12 साल के एक बच्चे ने अपनी मां को गोली मारी, अपनी मां का कत्ल। किस मां का कत्ल? जिस मां ने 2 साल तक जिगर का खून दूध की सूरत में पिलाया, उसका कत्ल। जिसने सर्दियों और गर्मियों में इसके बिस्तर और आराम का ख्याल किया, उसका कत्ल। और यह बढ़ती हुई फहाशी ने हमें यहां तक हमारे खून सफेद कर दिए हैं। जू न्यूज की रिपोर्ट शायद अब भी मेरे मोबाइल में मौजूद हो। 13-14 साल की लड़की है। उस 13-14 साल की लड़की का किसी लड़के के साथ कोई ताल्लुक बना, बाप रोकने लगा, मना करने लगा, बेटा ऐसा न किया करो, बेटा ये गलत है। जब वो बात न आई, बाप ने थोड़ी सख्ती की। उसने अपने जिसके साथ उसका ताल्लुक है उसकी मशावरत के साथ घर में पिस्टल पड़ा हुआ था, रात का समय था, बाप सोया हुआ था, सोए बाप को फैर मार के कत्ल कर। यहां मेरी मजलिस में बैठे नौजवानों, अगर पर्दे में मेरी माएं बहनें बैठी हैं तो ठीक है, या ये लाइव के जरिए मेरी गुफ्तगू किसी मेरी बहन तक पहुंच जाए। मैं उसे ये पैगाम देना चाहता हूं, मेरी बहना, तुम्हें अपने और पराये का पता नहीं है। तुम समझती हो अपना वो है जो पैकेज लगा के तुम्हारे साथ फोन पे बात करे। तुम्हें वो अपना लगता है जो छोटी बड़ी ईद पर तुम्हें गिफ्ट दे। तुम्हें वो अपना लगता है जो तुझे कॉलेज से निसाए, 1 to 5 पे बिठाए, तुझे आइसक्रीम खिलाए। तुझे वो अपना लगता है, तुम्हें बाप क्यों नहीं अपना लगता? मेरी बहना, बाप अपना होता है। अपने और पराये की पहचान करो। फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैय्यन व बिल वालिदैनि ihसाना। अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक किया करो, उनका दिल न दुखाया करो, उनको परेशान न किया करो, उनको कभी दुख न दिया करो। सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर 40 साल बाद अपने वालिद मोहतरम से मिल रहे हैं। केनान से वालिद मोहतरम आए, मिस्र में थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, प्राइम मिनिस्टर बने हुए। अपने बाप का इस्तकबाल किया, अपने बाप का इस्तकबाल किया और उसे अपने पीएम हाउस में लेकर आए। यूं कुर्सियां लगी हुई हैं, ये वजीर खजाना की कुर्सी है, ये गवर्नर की कुर्सी है और ये जनाब फला वजीर की कुर्सी है। यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम देखने लगे, मैं अपने बाप को किस कुर्सी पे बिठाऊं, किस मसनद पे बिठाऊं। वजीरे, ये जो वजीर आदम वजीर आला की कुर्सी है, इस पे बिठा दूं? नहीं नहीं, ये कुर्सी छोटी है, मेरे बाप का शान बड़ा है। ये गवर्नर की कुर्सी पे बिठाऊं अपने बाप को? नहीं नहीं नहीं, ये कुर्सी छोटी है, मेरे बाप का शान बड़ा है, इस पे बिठाऊं? नहीं नहीं, ये भी कुर्सी छोटी है, मेरे बाप का शान बड़ा है। कुरान कहता बर्रफा अबवैहि अलल अर्शि व खर्रू लहू सुज्जदा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को अपने तख्त पे बिठाया, अपने तख्त पे बिठाया। पूरे पीएम हाउस में, पूरी जनाब उस जगह में जो सबसे बड़ी कुर्सी थी, उस पे अपने बाप को बिठाया। मुझे और आपको सबक मिला,
मुझे और आपको पैगाम मिला, घर के अंदर सबसे बेहतरीन बिस्तर बाप का होना चाहिए, घर के अंदर सबसे बेहतरीन सीटिंग अरेंजमेंट आपकी वालिदा का होना चाहिए, घर के अंदर सबसे बेहतरीन खाने के बर्तन आपके वालिदैन के होने चाहिए, घर के अंदर सबसे बेहतरीन बिस्तर आपके वालिद का होना चाहिए। क्या हम ऐसे करते हैं? नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं करते। हम लगाते हैं अपनी बीवी पर, हम खर्च करते हैं अपने बच्चों पर, फिर खर्च करते हैं अपने रिश्तेदारों पर, फिर खर्च करते हैं अपने यारों पर, फिर खर्च करते हैं अपनी पार्टीज पर, फिर कुछ बच जाए तो जाके हम अपने वालिदैन पर खर्च करते हैं। नहीं नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, ये इंसाफ की बात नहीं है, ये सरासर गलत बात है। कुरान कहता है वयसलूनका मादा युनफिकून कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। बेहतरीन खर्च वो है जो बंदा वालिदैन पे करता है, बेहतरीन खर्च वो है जो बूढ़े बाप पे कर दिया जाए, बेहतरीन खर्च वो है जो बूढ़ी माँ पे कर दिया जाए। हजरात मोहतरम, इनकी कदर कीजिए, अपने माँ बाप का ख्याल कीजिए, अपने माँ बाप को कभी दुख न दीजिए। फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया वबिल वालिदैन ihsana वबिल वालिदैन ihsana। आप कुरान करीम के उसलूब पे गौर करें, कभी आप खोलने कुरान पाक को, आपको ये मसला मिलेगा कुरान करीम में। आप खोलने हदीस मुबारका को, नबी आए, किताबें आई, शरीयतें आई, एक नबी आता उस पर एक शरीयत नाज़िल होती, बाद एक और नबी आता उस पर शरीयत उतरती। पहले नबी की शरीयत और बाद वाले नबी की शरीयत में कुछ फर्क आता, कुछ न कुछ कवानीन नए हो जाते, कुछ न कुछ कवानीन बदल दिए जाते। लेकिन कराची के रोशन जमीरों, मुझे अल्लाह की कसम है, मुझे तो कुरान और सुन्नत से यही पता चलता है, कानून बदलते रहे, शरीयतें बदलती रही, कौमें बदलती रही, नबी बदलते रहे, अल्लाह पाक के आसमान से नाज़िल करदा कवानीन बदलते रहे, लेकिन दो कानून ऐसे हैं वो कभी नहीं बदले। जमाने बदले वो कानून नहीं बदले, नबी बदले वो कानून नहीं बदले, शरीयतें बदली वो कानून नहीं बदले, कौमें बदली वो कानून नहीं बदले। वो दो कानून कौन से हैं? एक अल्लाह की इबादत का कानून कभी नहीं बदला, एक वालिदैन की खिदमत का कानून कभी नहीं बदला। ये दो कानून नहीं बदले, बल्कि आप अगर अल्लाह की किताब का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कानून तो दूर की बात है, लफ्ज तक नहीं बदले। वबिल वालिदैन ihsana, फिर आगे आया वबिल वालिदैन ihsana, फिर आगे आया वबिल वालिदैन, लफ्ज तक नहीं अल्लाह बदलता। कानून बदलना तो दूर की बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मसले में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। लफ्ज नहीं बदलते मौला करीम, और आप बदल जाते हो, मां की गोद में पैदा होकर बदल जाते हो, बाप की उंगली पकड़कर चलना सीख के बदल जाते हो, बाप की कमाई पे, और तेरा बाप कमाई कर करके बूढ़ा हो गया, तू बाप की कमाई खा खा के जवान हो गया, तेरे बाप की कमर झुक गई, तेरी कमर मजबूत हो गई। अल्लाह करीम ने यह मुकाम रखा है माँ बाप का। अल्लाह तो लफ्ज नहीं बदलता, तू जवानी चढ़ते ही बदल जाता है, शादी होते ही बदल जाता है। फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया वबिल वालिदैन ihsana। पता नहीं मेरी बात आपको याद रहे या न रहे, मैं दूर से आया हूं, मैं मेहमान हूं आपका, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपके सामने हाथ बांध सकता हूं, हाथ बांध से आपके गुजारिश करता हूं, यहाँ मेरे पूरे मजमे में, ये तरबियत और इस्लाही इज्तिमा में अगर कोई ऐसा नौजवान बैठा है जो अपने माँ बाप से नाराज है, या तो उठ के चला जाए, और या नहीं जाता तो दिल में वादा करे इज्तिमा के बाद जाकर अपने माँ बाप को जरूर राजी कर लेगा।
वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया वबिलवालिदैनि ihसाना वबिलवालिदैनि ihसाना वबिलवालिदैनि ihसाना। अपने माँ बाप को कभी दुख न दो, अपने माँ बाप को कभी परेशान न करो, अपने माँ बाप का दिल कभी न दुखाओ। मैं तहदीस नेमत के तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ, जिक्र करके मैं अपनी बात को आगे चलाऊंगा। ये जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, ये मेरे वालिद मुहतरम की दुआ है जो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं इतना बीमार हो गया, पत्तों की एक मदरसा में पढ़ा करता था, इतना बीमार हो गया था कि हर डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहा इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे याद है 15 दिन मेरे वालिद मोहतरम अस्पताल में मेरे पास रहे और फरमाते हैं हालत ये थी कि मैं अपनी मुट्ठी बंद कर लेता था तो मुझसे अपनी मुट्ठी तक भी खोली नहीं जाती थी, इतनी कमजोरी और इतनी बीमारी आ चुकी थी। वालिद मोहतरम फरमाते हैं एक रात मैंने अल्लाह के हुजूर दुआ की, या अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूँ अगर तू मेरे इस बेटे को सेहत दे दे, मैं इससे दुनिया का कोई काम नहीं लूंगा, मैं आप भी अपनी जुबान से कभी इसको कोई काम नहीं कहूंगा, मैं तुझसे वादा करता हूँ ये तेरे दीन के लिए वक़्फ होगा। हज़रात मोहतरम अल्लाह करीम ने मुझे सेहत अता फरमा दी और आज के दिन तक मेरे वालिद मोहतरम ने कभी मुझे ये भी नहीं कहा बेटा मुझे प्यास लगी है मुझे पानी का गिलास ला कर दो। फरमाते बेटा मैंने अल्लाह से वादा किया हुआ है ये तेरे दीन का काम करेगा, इससे मैं कोई काम नहीं लूंगा, कुछ नहीं है मुझ में, ये सब कुछ अल्लाह का करम है, अल्लाह के करम के बाद मेरे वालिद मोहतरम की दुआ है। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया वबिलवालिदैनि ihसाना। आगे क्या फरमाया, वबिलवालिदैनि ihसाना वबिज़िल कुर्बा। माँ बाप के बाद सबसे करीबी हक है अजीज व अकारब का, और अजीज व अकारब में सबसे पहले किसका हक है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, आपने फरमाया वालिदैन के बाद अजीज व अकारब ने सबसे पहले तुम्हारी बहनों का हक है, तुम्हारे वालिदैन के बाद तुम्हारी बहनें तुम्हारी नेकी की ज्यादा हकदार हैं, तुम्हारे एहसान की ज्यादा हकदार हैं, वो ज्यादा हकदार हैं कि उनके साथ नेकी की जाए, वो ज्यादा हकदार हैं कि उनका ख्याल किया जाए। मुझे नहीं पता आपके हालात कैसे हैं, मैं तो पंजाब में इतने सख्त दिल लोग देख के आया हूँ, इस तरह के लोग भी मैंने देखे हैं जो 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन बहन के घर गए हुए उन्हें 5 साल गुजर गए हैं, वो अपनी बहन के घर जाना पसंद नहीं करते। ईद के दिन वो सारे शहर को मिलते हैं, सारे शहर के छोटे छोटे बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखते हैं, नहीं दस्ते शफकत रखते तो अपनी बहन के सर पर नहीं रखते। उसका गुनाह क्या है, उसका कसूर क्या है? उसका कसूर ये है जी मौलाना मैं गया था, इतना बड़ा फ्रूट का शापर मैं अपनी बहन के दरवाजे पे लेकर गया और अपनी पगड़ी को मैंने उसके कदमों में रखा और मैंने कहा मेरी बहना वो जो फला मार्केट में 5 दुकानें तुम्हारे नाम की हैं, है तुम्हारी है, हक तुम्हारा है तुम्हारी है, हक तुम्हारा है, मुझे दे दो, है तुम्हारी हक तुम्हारा मुझे दे दो। तुम में और डाकू में कोई फर्क नहीं, तुम में और डाकू में कोई फर्क नहीं, सिर्फ फर्क कितना है वो गन रख के लौट गया, तुम अपनी बहन के कदमों में पगड़ी रख के लौट गया। जब हक उसका है तो तू कौन होता है? जब चीज उसकी है तो तू कौन होता है जो पांव में पगड़ी रखकर वो हक उससे छीन ले? तुझ में और डाकू में कोई फर्क नहीं। अब उस बेचारी के पास 2 रास्ते हैं, या हां का या ना का। हां करे तो हक से गई, ना करे तो फिर कहता है आज के बाद तू मेरे लिए मर गई, मैं तेरे लिए मर गया। मैं अपने बच्चों को भी कहूंगा
मैं मर जाऊं तो इसका मुंह ना, मेरा मुंह ना इसको देखने देना। हर जगह मुखालफत कर रहा है, सबको मिलता है, बहन को नहीं मिलता, उसके घर जाना पसंद नहीं करता, 5 वक्त का नमाजी है, मैं क्या करूं तेरी नमाजों का। तुझे हुकूकुल्लाह तो याद है, हुकूकुल इबाद तो तुम्हें भूले हुए हैं। क्या इसकी पूछ नहीं होगी? अल्लाह के यहां ये पूछे जाएंगे। और ये इतने अहम हक हैं कि जितनी देर तक बंदा मुतल्लिका माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। तुम क्या समझते हो? 5 वक्त का नमाजी, बल्कि 6 वक्त का नमाजी तहज्जुद भी पढ़ता है। हक खा रहा है भाइयों का, हक खा रहा है गरीबों का, हक खा रहा है बहनों का। ताकत का मान है, इसके पास दौलत है, इसके गनमैन है। और यार ये हमेशा थोड़ी रहते हैं, ये हमेशा नहीं रहते। माना कि आज तुम गरीबों की जमीन पे, कमजोरों की जमीन पे, अपने से छोटों की जमीनों पे कब्जे कर रहे हो, और वो बेचारे चुप के ताले लगे हुए, वो बोल नहीं सकते, कुछ तेरी इज्जत से नहीं बोलते, कुछ तुझसे डर के नहीं बोलते। लेकिन याद रखना ये ताले टूटेंगे, ये ताले टूटेंगे। कब? जब तू मर जाएगा, जब तू जमीन के नीचे पड़ा होगा, जब तुझे सिवाय दुआओं के किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, तब ये तेरी कब्र पर आकर ताला तोड़ेगा। कबीर वाला की एक बहन का वाकया फेसबुक पर बड़ा आम हुआ था। आज से साल पहले भाई फौत हो गया। भाई के मरने के बाद वो उसके जनाजे में आई और फिर मैयत लेके आगे जाने लगे। वो 7 साल चलती गई, कब्र में दफन कर दिया गया। वो पीछे खड़ी हो गई। जब लोगों ने हाथ उठाए, दुआ करने लगे, तो वो दुआ करती, अल्लाह मेरे भाई ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया, अल्लाह इसकी कब्र को कभी सुकून न देना, या अल्लाह इसको कभी कब्र में सुकून न देना। जब ये जिंदा था, इसकी इज्जत का ताला मेरी जुबान को लगा था, इसकी दौलत और इसके डर का ताला मेरी जुबान को लगा था। आज ताला टूट गया है। देखना मेरे भाइयों, कहीं ये ताले टूट ना जाएं, ये ताले कहीं टूट ना जाएं। किसी पे जुल्म न करो, किसी पे ज्यादती न करो, किसी का हक ना खाओ। फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि हसाना। नंबर 1, वबिदिल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारों में सबसे पहले बहनों का हक, और बहनों के बाद भाइयों का हक। तेरा भाई कमजोर है, तू पैसे वाला है, तू दौलत वाला है, तेरे पास दौलत है, ये तेरा कमाल नहीं, ये दौलत देने वाले का कमाल है। तेरी कोई हैसियत नहीं, ये उसका कमाल है। जिसे चाहे दौलत दे दे, जिसे चाहे मालदार बना दे। कुछ मेरे पंजाबी दोस्त बैठे हैं, उनका भी मैं बात पूरी करता चलूं। यहाँ एक पंजाबी शायर बड़ी प्यारी बात करता है, यकीनन पंजाबी सुनने वाले मुतासर होंगे। अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह का निज़ाम है, कोई रंग का काला है, कोई रंग का गोरा है। पंजाबी शायर कहता है, हाथ लाया मैले होमण कई हुंदे तवे तो काले ने, कई मारे हुए नसीबां दे, कई बहुते ही कर्मा वाले ने। किते सोना 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 है, किते कन्ना विच नहीं वाले ने, किते लस्सी पीण नूं मिलदी नहीं, कईयां कुत्ते भी दुधी पाले ने, किते अगले डंग लई जुड़दी नहीं, ते कई तेंदे फिरदे छट्टे ने। वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे किया सोने नक्शे कट्टे ने है। इको वल अंगूरां दी कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने। ये दौलत रब की दी हुई है, इसमें मान न किया कर। जब चाहे वो लेने पे काबिल है। दूसरे लोग जो फायदा उठा रहे हैं, अपने भाई को फायदा क्यों नहीं देता? हर बंदे को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने भाई का फायदा करे, सबसे पहले अपने भाई का फायदा करे। ओ यारो,
اپنے بھائی کا اس طرح پیدا کرنا ہے. کس طرح اپنے بھائی کا اس طرح پیدا کرنا ہے جس طرح حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کا پیدا کیا تھا. آپ جانتے کیسے کیا؟ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا کی. کوہ طور پر گئے. کوہ طور پر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ پیغمبر کو نبوت عطا کر دی اور فرمایا انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنا نبی بنایا, اپنا رسول بنا لیا, اپنے مقرب اور چنیدہ بندوں میں شامل کر لیا. تو آج کے بعد میرا نبی ہے, میرا پیغمبر رسول ہے. اب نبی بننے کے بعد حضرت موسیٰ پیغمبر پہلی دعا اللہ سے کر رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ قال رب اشرح لی, سورہ طٰہٰ, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخشدد بہ ادری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. اے میرے اللہ, میں تیرا نبی موسیٰ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. سنو یار سنو, سمجھنے پہ آؤ تو یہی بات کافی ہے. یہاں بھائی بھائیوں پہ پرچے کروا رہے ہیں, یہاں بھائی بھائیوں کے بچے اغوا کروا رہے ہیں, یہاں زمین کی خاطر بھائی بھائیوں کو قتل کروا رہے ہیں. ادھر دیکھو کیا بن رہا ہے. اے میری اللہ, میں تیرا موسیٰ نبی تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہوں. اللہ تو نے مجھے نبی بنایا ہے, میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے. بھائی بھائی کے لیے نبوت مانگ رہا ہے, یہاں بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے, یہاں بھائی بھائی کے خون سے ہاتھ دھو رہا ہے, اور وہاں بھائی بھائی کے لیے نبوت مانگ رہا ہے. یا اللہ تو نے مجھے نبی بنایا, میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا لے. آواز آئی, اے میرے موسیٰ پیغمبر وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ. موسیٰ ہم اپنے قانون سے بناتے ہیں, جہاں چاہیں ہم نبوت رکھ دیں, جس کو چاہیں نبی بنا دیں. رول تو یہی ہے, قانون تو یہی ہے, دستور تو یہی ہے. لیکن آج تیرا انداز کتنا پیارا لگا موسیٰ, تیرا انداز کتنا اچھا لگا موسیٰ. اور لوگ اپنے لیے ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں, لوگ اپنے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. موسیٰ تیرے ہاتھ بھی اٹھے تو تیرے بھائی کے لیے, موسیٰ تیری زبان سے جملے بھی نکلے تو تیرے بھائی کے لیے. مجھے یہ تیرا انداز اتنا پسند آیا, جا میں نے تیرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا ہے. یہ ہے بھائی کے ساتھ نیکی کرنا, ایسے ہوتی ہے بھائیوں کے ساتھ نیکی. اللہ ہمیں بھی توفیق دے, ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کریں, اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ. اور دوسروں کو بھی تو کھلاتے ہو یاروں, بیلیوں کے اوپر ہزاروں خرچ کر دیتے ہو. بھائی تیرا بھوکا پڑا ہے, اس کے بچے بھوکے پڑے ہیں, تم موجے کر رہے ہو اور دوسروں کو کیوں دیتے ہو؟ بھائی کو کھلاؤ, اس کو کھلاؤ, اس کو کیوں نہیں کھلاتے؟ اس کے بچوں کو کیوں نہیں کھلاتے ہو؟ اس کے بچوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو. تم پہ فرض ہے کہ تم اپنے بھائی کے حقوق کا خیال کرو. یہ حقوق العباد ہے, اللہ ہمیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات تفصیلاً ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے, انشاءاللہ پھر موقع ملا تو مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, میں نے جو بیان کیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک ضروری میسج آپ کو دینا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ ختم ہوگا, یا پتہ نہیں آگے چلے گا. اچھا,
नदम इंशाअल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा। मेरे भाई ने भी कहा है, मेरा भाई ये कह रहा मैं 20 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर करके आया हूँ। पंजाबी एक नदम है, मैं इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। एक जरूरी मैसेज वो सुन लें। मैसेज ये है कि मैंने उकाड़ा, पंजाब उकाड़ा में एक मंसूबा शुरू किया है जहां हम एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं जो खास उलमा के लिए होगा। जो उलमा बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बाद दफा जमातें भी जवाब दे जाती हैं, तो वो बेचारे अपनी दवा दारू से भी तंग हो जाते हैं। तो हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं कि जिसमें उलमा का फ्री इलाज हो। मैंने सिद्ध का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं पंजाब में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की कसमें जगते मिलती मिसाल कोई नहीं। होते हसामण वाला उजड़े बसामण वाला ताई कदीमा देओ आगे जगमण वाला रब नू मनावण वाला ऐसा दीदार कोई नहीं। अल्लाह की कसमें जगते मिलती मिसाल कोई नहीं। अच्छा, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दीन और ईमान मदीने में है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बात सबा। ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ आपके इशारे का। अच्छा,
یہ ادارہ اللہ کریم آپ کو برکت دے. محترم عامر نجیب صاحب اور آپ کی پوری کیبنٹ اور میرے محترم پیارے بھائی کامران سلیم صاحب، ارشد سیکٹری صاحب، بھائی اختر صاحب، دیگر احباب، محترم بھائی یاسر صاحب، جنہوں نے 2 دن تک پوری ضیافت کا اور پوری محبت کا اظہار کیا. آپ سب کا بھی شکریہ. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. ہمارے محترم سلمان بھائی یہ بیٹھے ہیں اور مجھے بار بار فرمائشیں کرتے جا رہے ہیں. بس یہ آخری فرمائش ہے کیونکہ وقت جو ہے وہ ٹکٹ کا ہو رہا ہے، کرنا ہے. تو انشاءاللہ چند آیات میں آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کی آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ فائنلی اجازت ہوگی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. میسج آپ نے بھولنا نہیں ہے، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور ضرور کام کر کے جانا ہے، اور نہیں کہ دعا ہی دے کے جایا ہے. آپ تمام دوستوں کو بنانا چاہتے ہیں